Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. So in the class 12 macroeconomics we had started and this is our third video. Let us see what we have to study today. Already we had studied few of the topics, that is difference between micro and macroeconomics in first video. Then different types of goods we had already studied, and today we have to start with uh, let us have a small recap about the difference between the consumption goods and the capital goods. आप लोगों को याद होगा अच्छी तरह से हमने लास्ट वीडियो में जो ख़त्म किया था वो टाइप्स ऑफ गुड्स पे किया था. तो चलिए पहले देखते हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होता है. कंजम्पशन गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन by the consumer. Capital goods are the goods which are also used finally but by the producer for further production like machinery and all. Okay, further देखते हैं इसमें क्या लिखा. फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स particularly the consumer, and capital goods do not lead to direct satisfaction of human wants because indirectly they satisfy the human wants but indirectly, because like if a producer is using some plant machinery or etc, so it is not satisfying the direct wants of the consumer but indirectly it is adding to the production, so it is also indirectly fulfilling the demand. After that, second point, for the consumption goods consumed by the households when purchased, and for the capital goods these goods are used by the producers for further production. I hope आप लोगों को याद होगा the difference between intermediate goods and capital goods. हमने एक डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो, that is all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods because the producer goods includes capital goods as well as intermediate goods. I hope याद होगा. Okay, let us move to the third point of the consumer goods. So consumer goods has expenditure is called consumption expenditure. जो भी consumption goods को purchase करने के लिए हम expenditure करते हैं that is known as consumption expenditure, while the expenditure made for the capital goods is known as investment expenditure. Actually आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, इन्वेस्टमेंट. तो उसके प्रेफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये डिस्टिंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ. सो द अमाउंट स्पेंट फॉर द और एक्सपेंडिचर मेड फॉर कैपिटल गुड्स इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब भी एक कंज्यूमर खर्चा करता है तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन, जबकि एक प्रोड्यूसर जब खर्चा करता है तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है. कंजम्पशन गुड्स, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, while for the capital goods higher production of capital goods leads to higher production capacity in the economy, backbone of GDP growth. तो जहाँ पे कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पे लेवल ऑफ वेलफेयर इंक्रीज़ होता है, बट जहाँ पे कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे इकॉनमी की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है. बिकॉज एक मशीनरी है और जिसकी सपोज 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है तो हमारी इकॉनमी की कैपेसिटी भी 10,000. उसी की जगह अगर हम 2 मशीनरी लगा देंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की हो जाएगी. अगर हम 3 मशीनरी लगा देंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 यूनिट्स की हो जाएगी. तो जैसे जैसे हम कैपिटल गुड्स का इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है. ओके, सो दिस वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स. आई होप पूरा अच्छा सा रिकॉल हो गया होगा आपको पिछले वीडियोस का. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे कि समझा व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन. इन्वेस्टमेंट मीन्स द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्रोड्यूसर for the purchase of capital goods is known as investment or investment expenditure. So let us have a little bit small distinction or small explanation regarding investment. What does investment mean? Investment involves employment of funds with the aim of achieving additional income और ग्रोथ इन वैल्यूज़. ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर जब भी अपने बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, इट एक्सपेक्ट्स सर्टेन इनकम, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता ही करता है. सो इट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एडिशनल इनकम और ग्रोथ इन वैल्यूज़. इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. देखिए कैपिटल का मीनिंग क्या होता है. कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड and increase in the stock of capital is investment. Capital is denoted by alphabet K and investment is denoted by alphabet I. So जो
पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आई इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, एक इक्वेशन काइंड ऑफ बना हुआ है, आई इक्वल्स टू डेल्टा के, इट रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 10,000 रुपीज़ का कैपिटल है बिजनेस में, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मेरा जो कैपिटल है वो 15,000 रुपीज़ का हो गया, तो मैंने करंट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया, व्हाट इज़ द चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल इज़ ₹5,000, सो व्हाट इज़ माय इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस ईयर, ₹5,000 इज़ द इन्वेस्टमेंट। सो ये याद रखना है आपको अच्छी तरह से अपने माइंड में, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन कैपिटल। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल कर सकें आप, हमने डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो पढ़ा था। फ्लो which is measured over a period of time while stock which is measured at a point of time। स्टॉक का मैंने आपको बताया था जो हमारी टंकी में पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, और फ्लो का मतलब है अगर आपने नल खोल दिया तो उसमें से जो पानी बह रहा है वो फ्लो है। जो एक तालाब है उसके अंदर जो पानी है वो स्टॉक है, जबकि जो नदी में जो पानी बह रहा है वो फ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, इन दोनों में से कौन सा आइटम आपको स्टॉक का लगता है और कौन सा आइटम आपको फ्लो का लगता है, कमेंट में आप मुझे बताएंगे। आई रिपीट, फ्लो का और स्टॉक का मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है या फ्लो, और कैपिटल स्टॉक है या फ्लो, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन फर्दर। चेंज इन द स्टॉक इक्वल्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम चेंज इन स्टॉक को कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द एक्चुअली अनदर नेम गिवन टू द इन्वेस्टमेंट ओनली। अगर आप वर्ड बोले इन्वेस्टमेंट या फिर वर्ड बोले कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, दीज आर द सिनोनिम्स। लेट अस टेक फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर हैविंग, दैट इज़ लेंडिंग मनी टू अदर्स ऑन इंटरेस्ट। ऑब्वियसली किसी को आप मनी लैंड करते हैं, दैट इज़ लोन्स एंड एडवांसेज अलाउड टू सर्टन पर्सन, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स में अपीयर होते हैं। परचेज ऑफ गोल्ड, वैल्यू एप्रिसिएशन, हमने कोई गोल्ड सिल्वर के आइटम्स परचेज करके रखी, अपने पास वैल्यूबल ऑर्नामेंट्स परचेज करके रखें, तो वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट में। फिर देखिए क्या लिखा, परचेज ऑफ इंश्योरेंस प्लान, प्रॉमिस्ड फ्यूचर बेनिफिट्स। इंश्योरेंस प्लान, सपोज आपने अगर फायर इंश्योरेंस करवा लिया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा लिया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट में कौन सा इंश्योरेंस प्लान आएगा जिसमें आपको फ्यूचर बेनिफिट्स अश्योर्ड हैं कि आपको ऑन एक्सपायरी दिए फिक्स सम जरूर मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट में आता है। अगर आप है ना फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होता है, लेकिन जिसमें फ्यूचर में एक एक्सपायरी के बाद में फिक्स अमाउंट मिलना अश्योर्ड है, वो हमारा इंश्योरेंस प्लान जो है वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ essential quality of investment। what is the essential quality, what is the main quality of investment, that it involves waiting for a reward। जहाँ कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है, we always expect some return and it involves waiting for the reward। let us move further, what is given next now, the types of investment। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन कैपिटल, और मैंने इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ द इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, दैट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल गुड्स में, यानी कि आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट ये सब परचेज़ किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू काइंड्स, दैट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेट अस टेक अ detailed explanation about these terms। fixed capital, money that we invest in fixed assets such as building, plant, equipment, land and vehicles comes under fixed capital or fixed investment। what is the significance of fixed investment? raises the production capacity of producer। the most important things, मतलब एक बिल्कुल अगर डायरेक्ट सिंगल सेंटेंस में अगर आपको बोलना हो तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इकॉनमी की कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। सो वही चीज़ आ रहा है, दैट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी
प्रोड्यूसर की इंक्रीज होगी। लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट, 2 मशीनरी है डबल प्रोडक्शन होगा, 3 मशीनरी है 3 टाइम्स प्रोडक्शन होगा, सो इट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट एंड लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आउटपुट होगा उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको 2 काइंड्स बताया। इन्वेस्टमेंट कैन बी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैन बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल गुड्स को परचेज़ करने के लिए, मनी स्पेंड किया है कैपिटल गुड्स को परचेज़ करने के लिए, तो हम उसको कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपने परचेज़ किया है रॉ मटेरियल, अगर आपने परचेज़ किया गुड्स को रीसेल पर्पज़ के लिए, तो फिर वो आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखिए क्या लिखा है मीनिंग में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स and raw material, 3 kinds of stock are there, okay, and it is called as inventory investment। ये जो आप स्टॉक होल्ड कर रहे हैं इसी को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेट अस हैव व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एक्चुअली, इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। सो इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। आपको प्रोडक्शन कभी भी इंटरप्टेड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया और लेबरर्स बैठी हैं, मशीनरी बंद पड़ी है। अगर आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, अगर आप स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, देयर विल बी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट। Input means raw materials, and producers can avoid day-to-day purchase from the market। एक साथ अगर परचेज करके रख लेते हैं हम 1 महीने का 2 महीने का स्टॉक, तो ऑब्वियसली डेली परचेज नहीं करना पड़ेगा, इट विल सेव टाइम। And lastly, that is uncertainties of market can be avoided। Uncertainties related to fluctuations in prices, fluctuations in supply, ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे हम थोड़ा सा सेफ गार्ड हो सकेंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, अब मान लीजिए कोई यूनिट है जिसके पास में रॉ मटेरियल वो डेली बेसिस पे परचेज़ करता था, तो लॉकडाउन में तो उसका प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। और अगर वो नेसेसिटी प्रोडक्ट बनाता है तो भी वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे परचेज कर रहा था। और दूसरा बिजनेस जो इन्वेंट्री का स्टॉक मेंटेन करके रखता है, वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाएगा। सो दिस इज़ द एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और ये जितने भी पॉइंट्स आप जगह जगह वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दीज विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन टू लर्न इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। लेट अस हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली ये जो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज़ द बेस फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसका वेटेज है एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्टली 8 नंबर का, तो सो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मार्क्स का जो वेटेज है सोल अकेले एक चैप्टर का नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, उसका बेस यहाँ पे रेडी हो रहा है। सो लेट अस हैव अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट इन्वेस्टमेंट। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के 2 ही काइंड्स हैं, दैट इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, बट वी हैव वन मोर डिफरेंस, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। सो डिफरेंस सिर्फ एक टर्म का है। इन्वेस्टमेंट में से, यानी कि कैपिटल गुड्स जो है उसकी जो भी वैल्यू है उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो आपका हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। यानी आपने 10,000 रुपीज़ की बिल्डिंग परचेज़ की, वो हो गया आपका क्या हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और 1 साल बाद उसमें से आपने जो डेप्रिसिएशन लेस किया 10,000 का, और आपके पास में जो उसकी वैल्यू बचती है वो हो गया आपका नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट के परचेज पे जो टोटल फुल अमाउंट आपने स्पेंड किया है, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला इक्वल्स टू टोटल परचेज ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स आपने न्यू कैपिटल गुड्स परचेज किए उसके ऊपर जो टोटल मनी स्पेंड किया, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। Gross investment also includes, okay, gross investment also includes रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये रिप्लेसमेंट वर्ड जो है ना, इसको अच्छी तरह से माइंड में याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन तो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, उसका अकाउंटिंग भी पढ़ा है। डेप्रिसिएशन को ही हम रिप्लेसमेंट वर्ड बोलते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक ऑब्जेक्टिव एक्चुअली रिप्लेसमेंट होता है। इसको डिटेल में मैं आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। सो अभी आपको बस ये याद रखना है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड माना जाता है, उसको निकाला नहीं जाता है, हटाया नहीं जाता है, बट इट ऑलवेज includes itself in the value of fixed asset. And last one, that is doesn't show net addition to the existing capital stock। और ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसे हम कैपिटल स्टॉक में एडिशन नहीं करते हैं। ये आपको पॉइंट्स याद रखने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए। लेट अस सी व्हाट इज गिवन फॉर द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप सिर्फ
एक टर्म अगर याद रख लें डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई भी चीज़ परचेज करके ले गए, कोई भी चीज़ से मतलब जो कैपिटल गुड्स यानी फिक्स एसेट आपने परचेज किया, तो जितने भी परचेज किया वो हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसमें से साल के एंड में आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, तो जो बचा आपके पास वैल्यू जिसको आप रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते थे, वो उसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। एस्टिमेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इट डजंट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताया था डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड होता है, और उस डेप्रिसिएशन को जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जब निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो नेट इन्वेस्टमेंट बचता है. सो इन नेट इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. एंड द लास्ट वन दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड कैपिटल स्टॉक. जो भी हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन शो होता है एज इन द फॉर्म ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट. सो दिस वाज द डिफरेंशिएशन बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. हमारा नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ वीडियो में, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी डेप्रिसिएशन इन डिटेल. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी रह गया है तो उसको कमेंट करें. ओके, थैंक यू वेरी मच. स्टडी करते रहें. गॉड ब्लेस यू.